Okay, so beta, the recording of the meeting is on now. So yesterday we had done some concepts related to plotting and PL related questions. We had done resolution of the cogged hat. So today we are going to do some more concepts. Basically the concept for today is high altitude observation. So that's the plan for today. सर उससे पहले हाँ थोड़े कुछ कल क्वेश्चंस ट्राई किए थे कॉग्नेट वाले पास्ट ईयर पेपर्स में से, तो उसमें कुछ डाउट्स थे। मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप कर दिए थे ग्रुप पे ARI जैन बैच के। ओके, तो अगर आप बता सके तो। ठीक है बेटा, let me display the questions here so that other people can also see. ओके सर। Okay beta, this is the first question. यस सर। Okay. तो बेटा can you tell me इसमें क्या डाउट आ रहा है? सर इसमें बेसिकली वो DR पोजीशन पे इसमें मैं इसका जो सॉल्यूशन देख रहा था, तो इसने इसमें डिस्टेंसेस कैलकुलेट करके करे, तो डायग्राम देख के समझ में नहीं आ रहा कि कैसे उसने बनाया हुआ है। Okay. Okay, forget about the solution. Otherwise you feel any doubt in the question? नहीं समझ में आ रहा कैसे करना है? हाँ सर, समझ नहीं आ रहा। Okay, let's open up the whiteboard and see. Okay, so beta here they have given us a DR position. You see 3427 north and 07642 east. And they have given us the course and speed of the ship also. The course is 205, speed is 16 knots. And they have taken the following observations. One observation is taken at 1820, it's a intercept site. Then 1824, another intercept, and 1834, there is a third intercept which is taken. They want us to find the position at 1830 hours. ओके, अब बेसिकली इसमें करना क्या है बेटा? सबसे पहले तो जो DR पोजीशन हमें दी है, लेट्स प्लॉट दैट DR पोजीशन। ये DR पोजीशन हमने यहाँ पे मार्क कर दी, 3427 नॉर्थ, 7642 ईस्ट। अब हमें जो पोजीशन चाहिए वो चाहिए 1830 की। जो तीनों की तीनों PLs हैं हमारी, they are at some other time. One is at 1820, another is 1824, another is 1834. So हमें इन सारी PLs को 1830 पे लेके आना है। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, इन PLs को प्लॉट कर लेते हैं। The first one is azimuth 167, intercept 2.3 towards. So azimuth is 167. Let me draw. Let's say this is azimuth 167. Intercept is
2.3 माइल टूवर्ड्स। सो एज पर अवर स्केल ये 2.3 माइल टूवर्ड्स अगर हम ले लेंगे तो ये हमारी पीएल आ जाएगी। नाउ दिस पीएल इज फॉर 1820। हमें जो पोजीशन चाहिए वो चाहिए 1830 की। सो वी शुड ट्रांसफर दिस पोजीशन लाइन अहेड बाय 10 मिनट्स। 1820 से हमें इसे 1830 पे लेके जाना है। So how do we transfer it? The course which we are steering is 205, speed is 16 knots. So 10 minutes में with a speed of 16 knots, how much distance we are going to cover, beta? Two point six. 2.66. 4.6, okay. 2.66. Oh, sorry, 2.6. So from the ITP of this PL, you draw a course of 205 and then you cut this distance. So 2.6 mile का distance आप cut करोगे, you will have this position from where this transferred PL will pass. So we get this point. अब इस पॉइंट से हम इनिशियल पीएल के पैरेलल एक दूसरी पीएल ड्रॉ कर देते हैं। लेट्स टेक ए डिफरेंट कलर, वी कैन टेक लाइट ब्लू। सो मैंने ये लाइट ब्लू कलर की पीएल ड्रॉ कर दी है विच इज पैरेलल टू द इनिशियल पीएल एंड आई मार्क इट विद डबल एरोज। सो ये जो लाइट ब्लू कलर की पीएल है, नाउ दिस पीएल इज फॉर 1830। This has been transferred. दूसरी पीएल हमारे पास है 1824 की, so let's try to plot that. PL is azimuth 081 and intercept 4.6 towards. So 081 azimuth and intercept is 4.6 towards. So as per my scale, 4.6 towards. That means the PL should be here. Now this PL is for 1824. अब इस PL को हमें 6 minutes ahead run apply करना है so that it gets transferred to 1830. So what I do is I apply my course which is 205 on the ITP and 6 मिनट में हम कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? That will be 1.6 miles. So with a speed of 16 knots, in 6 minutes, I will be covering 1.6 miles. तो मैंने ये 1.6 miles का डिस्टेंस यहाँ पे कट किया. I get a reference point, and from this reference point, I draw my second transferred PL. It will pass from this point and it will be parallel to the initial PL. तो बेटा ये मेरे पास दूसरी transferred PL आ गई है. Now this transferred PL is also for time 1830. So you can mark here. ये भी 1830 की है. अब अगर इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें सिर्फ 2 PL दी होती तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता. Wherever these two intersect would be our position. But now they have given us a third PL also. अब ये जो थर्ड PL है, थर्ड PL को हम बिल्कुल ऐसे ही प्लॉट करेंगे जैसे हमने पहली दो को प्लॉट किया है. So azimuth is 237, intercept is 0.9. So azimuth is 237. And intercept is 0.9. Sorry, 0.9. That's right. And it is 0.9 away. So 237 0.9 away. Okay. So ये जो PL है हमारी, ये PL कुछ ऐसे बनने वाली है. Now this PL is for 1834. Okay. So इसको हमें 1830 पे लेके जाने के लिए we have to apply 4 minutes back run. So let's apply the back run.
So for applying the back run, we will not go on 205 now, we will go on the reciprocal course. That means from the ITP position, we apply a course of 025 and we apply it for 4 minutes. Okay, so 4 minutes, the distance would be close to 1 mile. So I cut that distance. We calculate how much distance a vessel can cover with 16 knot speed in 4 minutes of time. And we get this reference position. And now we can draw the third transferred PL also. So from this point, I draw the third transferred PL. Now, मेरा जो approximate plot है, इसमें ये छोटी सी cocked hat बन रही है. But when you draw it accurately, there are two possibilities. एक तो यहाँ पे cocked hat बन सकती है, दूसरा they may intersect at one single point. If they are intersecting at one single point, then that point is the fix. The question ends there. But if it is a cocked hat, then we are going to resolve this cocked hat. Okay. So resolution जैसे हमने कल किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे. So beta, did you try out this plot? Is the cocked hat being formed? So I was trying out, but then इसका solution देखा, then doubt में आ गया मैं. Reason being ये इसने अलग ही method से किया हुआ है इसमें. जो solution है ये मंगाया हुआ था. That's why I got confused in this कि भाई सही जा रहे हैं ये कि नहीं जा रहे. Forget about his solution. Are you able to understand what we did now? Yes sir, absolutely. Okay, so you can go ahead with this method and you can see whether a cocked hat is being formed or not. So अगर cocked hat बनती है तो फिर हमें cocked hat को resolve करना है. And in this case, you see the bearing stretch is less than 180. Okay, so if it is less than 180, हमें सबसे पहले middle bearing को identify करना होता है. Middle bearing in this case, can you tell me which is the middle bearing? Anyone? बेटा इसमें middle bearing मिल रही है? Stretch 180 से बड़ा है या छोटा है? पहले ये बताओ. 167. Okay. 167. Very good. So middle bearing is 167. So basically, this is the middle bearing, this one. And इससे related जो PL है, let's identify that PL also. So let me pick up red color. So हमारी जो middle PL आ जाएगी, वो ये वाली PL है बेटा. This is the PL. So अगर यहाँ पे cocked hat बनेगी, तो हम इसके जो external angle bisector हैं, one will be this one, second will be this one. So wherever they are intersecting, the third angle which does not is not connected with the middle PL in any way, तो उसका हम लोग internal bisector ही draw करेंगे. And wherever they intersect, this will be the position of the ship. मुझे वैसे देखने से लग रहा है कि अगर cocked hat बनेगी भी तो बहुत छोटी cocked hat बनेगी यहाँ पे. Either it will be one single position or it will be a very small cocked hat. हाँ सर, उसके उसमें भी एक small cocked hat बन रही थी जिसमें solution इसने किया हुआ है. Okay, all right. सर सिमिलर क्वेश्चन था, वो ट्राई आउट किया था, उसमें बहुत छोटी cocked hat बन रही थी. मतलब ये नंबरिंग चेंज थी, बाकी सब कुछ सेम था. Okay बेटा, okay. तो I have told you कि अगर छोटी cocked hat बनती है तो सिर्फ एक ही चीज आपने देखनी है, क्योंकि देखो lat long में तो कोई खास फर्क नहीं आएगा. If the triangle is very small, whether you put the position inside or outside, the lat long is not going to vary much. Now what is going to be important that time is, examiner is going to check whether you have taken the position inside the triangle or outside the triangle. So that's the thing to remember, and then we can find the answer that way. So the doubt is resolved, beta? Yes sir. Okay. So let's सर see एक डाउट था सर. हाँ बोलो बेटा. सर ये आपने 180 के अंदर क्यों लिया? बिकॉज आपने ये जो 81 की बेरिंग थी उसको लाइन लेके 180 के अंदर किया है सर. मैं बेटा अभी बता देता हूँ.
ओके, ये देखो हम एक रफ डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे और तीनों बियरिंग को ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट बियरिंग जो इन्होंने दे रखी है 167, तो 167 would come somewhere here. Second is 081, 081 would come somewhere here. Okay, and the third is 237. 237 is going to come somewhere here. Okay, because you see this angle is basically 9 degrees. मैंने तो रफ डायग्राम ही बनाई है, आप तो प्रोट्रैक्टर या 360 डिग्री राउंड के साथ इसको परफेक्ट डायग्राम भी बना सकते हो। तो this angle is 9 degrees and this angle here is 237 na 33 degrees. Okay, so this is how it is being made. Now when you see these three stars, you see that it is possible for us to draw a straight line in such a way that all these three come on one side of that straight line. हम ऐसी एक straight line draw कर सकते हैं। So if you draw a straight line from here in this way, okay, आप देखोगे ये तीनों के तीनों उस straight line के एक ही तरफ आ गए हैं। So that tells us that the bearing stretches less than 180. ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ओके, और बेटा और कोई डाउट जो आ रहा है? एनी अदर डाउट? सर इसको वो कैलकुलेशन से करना ठीक नहीं रहेगा ना सर, जिसमें वो डीआर लेट और डिपार्चर वगैरह करके तो लंबा पड़ जाएगा। बेटा कैलकुलेशन से ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बिकॉज हाँ, यू सी यू विल नीड टू डू 3 प्लेन एंड पैरेलल सेलिंग कैलकुलेशन, यस सर, और उससे आपका काम आसान नहीं होगा। आई विल टेल यू व्हाई, बिकॉज आप 3 अलग अलग पोजीशन को यहाँ पे प्लॉट करोगे। So you will have to calculate departures between all the 3 longitudes, then find out how much distance to keep between all these 3 longitudes. फिर 3 latitude plot करने पड़ेंगे plot में। So I recommend the calculation method here because it will become complicated and it will not save your time. In fact, it may increase the time. Yes sir, yes. Okay. सर ये इसमें एक सर लास्ट क्वेश्चन भी भेजा है आपको उन्होंने, लास्ट वन। This is the second one. नेक्स्ट वन, ये तो समझ में आ गया। This one, huh? ये वाला सर, इसका आंसर आई नो हाउ टू डू इट, बट इनिशियल में मेरा आंसर में गड़बड़ इसलिए हो गई थी क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन में जीएमटी टाइम दिया हुआ है ना, तो इसमें मैंने वो 10th डे के लिए ले लिया था, एंड इसने उसमें जीएमटी में लॉन्जिट्यूड के हिसाब से एलआईटी निकाल के ये चेक किया कि करेक्ट जीएमटी क्या होगा। Okay, let me see. DR position 142.10 east, sextant altitude of Polaris was 4110, and GMT so and so. At the same time, sextant altitude of Tenebola was this much. Find the position of vessel at the time of observation. तो इसमें बेटा पोलारिस की एक पीएल आएगी हमारे पास और डेनेबोला की पीएल आएगी 10th October 1992. GMT is 19 hour 41 minute 28 second. ओके, ठीक है बेटा, अब बताओ इसमें क्या डाउट आ रहा है? हाँ बेटा, इसमें क्या डाउट आ रहा है इस क्वेश्चन में? Doubt is gone or the internet is gone. ओके, हेलो, गौरव हाँ बेटा, सर। हाँ इसमें क्या डाउट आ रहा है? सर इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मैंने एक्चुअली इसमें जीएमटी को ना कन्वर्ट नहीं किया था। इसमें मेरे को ये समझ में नहीं आया कि इसमें जीएमटी बेसिकली कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि उसमें तो क्वेश्चन में लिखा था ना कि 10th डे था तो 10th डे एंड जीएमटी टाइम वही हो जाता, तो इसमें क्रॉस क्यों कर रहा पोजीशन के साथ। अब देखो बेटा, मैंने आपको एक नोट लिखवाया था, इफ यू रिमेम्बर, द डेट गिवन इन द क्वेश्चन इज ऑलवेज विच डेट? अपना एलएमटी डेट, LMT Ship's date or date. date or ship date, right? यस यस।
तो अब आप देखो कि ये जो 10 अक्टूबर 1992 उन्होंने डेट हमें दी है, ये कौन सी डेट होनी चाहिए? शिप की डेट सर। दिस शुड बी द शिप डेट। जीएमटी उन्होंने हमें दे रखा है 19 आवर 41 मिनट 28 सेकेंड, यहाँ पे डेट नहीं दी है हमें। तो जीएमटी डेट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, आप जो अपना लॉन्जिट्यूड इन टाइम है 142 ईस्ट, लॉन्जिट्यूड ईस्ट जीएमटी लीस्ट, ओके, और ये जो आएगा आपका ये 9 आवर एंड सम मिनट्स आएगा, अबाउट 9.5 आवर्स का आपका एलआईटी आएगा। हाँ So सर। when you add it, the LMT time goes on the next day. So जो 10th अक्टूबर की डेट है वो आपकी LMT की डेट है. For GMT when you come back, you will realize that the date becomes 9th October 1992. ओके, वो बेसिकली उसने फिर वो 10th को जीएमटी मान के चेक किया कि वो मेरे शिप की डेट आ रही है कि नहीं आ रही है फाइनल में। नहीं नहीं, इसमें मैं बताता हूँ कैसे करना है बेटा. Let me show it on the whiteboard. सर ये क्वेश्चन में लिखा तो है ऑन 10th अक्टूबर एट शिप। हाँ, इन्होंने तो मेंशन भी किया है आगे एट शिप. नहीं, फिर इसी के बाद एक क्वेश्चन में सर जीएमटी की डेट भी दी हुई थी उसने, बट फिर भी उसने क्रॉस चेक किया ऐसे करके। If the GMT date is given, then not required to cross check बेटा. अगर उन्होंने यहाँ पे लिखा होता GMT so and so day, hour, minute and second, then no need to check बेटा. वो ये पहले क्वेश्चन में इसमें समझ में आया, बट व्हेन आई मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन तो उसमें जीएमटी के डेट भी मेंशन था, देन आल्सो दिस गाइस वाज वेरीफाइंग, तो देन फिर कंफ्यूजन हुआ कि मैंने कहा यार ये क्या फंडा है। Not required बेटा. See, अगर उन्होंने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया होता ना, let me show it to you here. अगर वो यहाँ पे डेट दे देते हमें, any तब date, कोई जरूरत नहीं थी। तरह से 9 डे अगर वो यहाँ पे लिख देते, अगर GMT के बाद डेट लिख दी गई है, then there is no problem at all. You don't need to check it then. Okay. तो बट अगर GMT के आगे डेट मेंशन नहीं है, इनफैक्ट यहाँ तो इसने काफी हद तक इसको क्लैरिफाई कर दिया, कई क्वेश्चन में तो उनको क्लैरिफाई करते ही नहीं है. लेट मी टेल यू हाउ कैन दे गिव दिस क्वेश्चन इज, so they can just write it here on 10th October 1992 at GMT 19 hour 41 minute 28 second. अगर ऐसा भी लिखा हो, यस, even then we will take the date as LMT date. GMT date तभी लेंगे if this 10th is mentioned after the word GMT. ठीक है सर, ठीक है Okay? ओके। और जब ये इन्होंने GMT के बाद डेट हमें मेंशन कर दी है, then you don't need to check the date at all. ठीक है सर। वी आर गोइंग थ्रू द सॉल्यूशंस आल्सो ना सर, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है कि भैया हमारा में ऐसे हो रहा है, इसने कैसे किया हुआ। ओके बेटा, मैं ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हें ना एक असाइनमेंट मेरे पास पड़ी है, सो आई विल सेंड यू दैट असाइनमेंट. मे बी यू कैन वर्क आउट दैट असाइनमेंट. आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखो, एंड आई हैव द आंसर्स ऑफ दैट क्वेश्चंस आल्सो, सो यू कैन मैच अप योर आंसर्स. तो ये सोल्यूशन मुझे पता नहीं है कि कहाँ से ये क्वेश्चंस हैं, फ्रॉम वेयर द सॉल्यूशंस आर. तो मैं तुम्हें एक असाइनमेंट भेज देता हूँ, यू कैन प्रैक्टिस दोज क्वेश्चंस. यस सर, दैट विल बी मच बेटर, क्योंकि अगर आंसर में कुछ गड़बड़ होती है ना तो इसका मेथड थोड़ा डिफरेंट किया हुआ है इसने, तो वो आपसे मैच नहीं करता, तो देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. सो इफ दैट इज पॉसिबल देन इट विल बी ग्रेट सर. ओके, मैं तुम्हें भेज देता हूँ बेटा. आई विल सेंड यू वन असाइनमेंट. लेट मी सी, आई हैव द असाइनमेंट हियर, आई विल पोस्ट इट ऑन द ग्रुप. उसमें आंसर्स भी मेंशन्ड है. द सॉल्यूशन इज नॉट देयर विद यू. अगर आप बोलोगे तो मैं सॉल्यूशन भी भेज दूंगा. तो भेज देना सर, भेज देना। पहले आंसर वाला भेज दीजिए सर। ट्राई ओके, कर लेने तो आंसर वाला भेज दो, उसके बाद देख लेंगे। आंसर वाला भेज दो, क्वेश्चन खुद बना लेंगे। ओके ओके, जस्ट अ मिनट, लेट मी सी. Okay, so I have this, I will post it on the group.
has gone on January. Now let's send it on December also. ओके बेटा, मैंने तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप पे असाइनमेंट डाल दी है। तो इस असाइनमेंट में आपके पास यू हैव टोटल 13 क्वेश्चंस। तो इनके आंसर्स भी लिखे हुए हैं, द आंसर्स आर देयर। ओनली डिफरेंस कुड बी, एज आई टोल्ड यू, कि प्लॉटिंग में थोड़ी बहुत एरर जो है वो क्वेश्चन में आती है। सो बिकॉज ऑफ दैट एरर कुड बी देयर, अदरवाइज द आंसर शुड मैच। और इनके सॉल्यूशंस भी मेरे पास हैं, तो आई विल सेंड यू द सॉल्यूशंस आल्सो। ओनली थिंग इज कि सॉल्यूशंस में हो सकता है कुछ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हों, द सीरियल नंबर्स मे नॉट मैच। तो just disregard the serial numbers. अगर कोई क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा, just see the next one, you will get the solution. But सारे क्वेश्चंस उसमें included हैं. There may be some extra questions also in the solution which you can leave. Okay sir. Okay, just give me a minute. I'll send you the solutions also. सर ये जो क्वेश्चंस आपने भेजे हैं, ये जो आप कह रहे थे एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आएगा, उसी के ऊपर है ना सर? That's right बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 and 6 ये दोनों कंबाइंड इसी असाइनमेंट में आपको मिल जाएंगे सारे के सारे। ठीक है। ओके मैंने सॉल्यूशंस भी आपको भेज दिए हैं, बट दीज सॉल्यूशंस आर ओनली टू बी referred to if you are not able to solve a question, or if you want to, the answer is not matching and you want to check. इनको पढ़ के इन क्वेश्चंस को मत करना बेटा, अदरवाइज देयर इज नो यूज। ओके, तो और बेटा और क्या डाउट्स हैं? सर ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे थे अभी आप, जो गौरव ने पूछा है, नंबर 6 क्वेश्चन, इसको एक बार बता दो सर, हाउ टू गो अबाउट इट, क्या कॉन्सेप्ट है ये? ओके ओके, आई विल ओपन इट अप। ओके, तो दिस वन यू आर सेइंग बेटा, ये लास्ट वाला जो हमने देखा था अभी, राइट? करेक्ट सर। ओके, वेट फॉर okay, so if you see the question beta, on 10th October 1992 at a ship in DR position 14210 east, the sextant altitude of Polaris was 4110 at GMT so and so. At the same time, sextant altitude of Denebola was 1636. Find the position of the vessel at the time of observation. अब बेटा इसमें देखो, बेसिकली उन्होंने हमें दो साइट्स दी हैं, वन इज पोलारिस, अनदर इज ए स्टार डेनेबुला। तो हमें इसमें ऑब्जर्वर की पोजीशन चाहिए। तो मेथड इसमें उन्होंने कोई नहीं दिया है हमें हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चन।
So if we go, जो हमने प्रोसीजर डिस्कस किया था, स्टेप 1 वाज चेक इफ द बॉडी इज ऑन द मेरिडियन, यहाँ पे कोई भी बॉडी मेरिडियन पे नहीं है. स्टेप 2 वाज चेक इफ इट इज ए पोलारिस साइट. यस, यहाँ पे हमें एक पोलारिस साइट मिल गई है. तो पोलारिस साइट ऑब्वियसली इज टू बी वर्कड आउट यूजिंग द पोलारिस करेक्शन टेबल. तो पोलारिस करेक्शन टेबल से हम ये पहली वाली साइट को वर्कआउट करेंगे, राइट. तो अब आप देखो कि इस साइट को अगर आप पोलारिस से वर्कआउट करते हो तो यू हैव एनफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल. ट्रू ऑल्टीट्यूड निकाल के फिर उसको लैटिट्यूड की तरह यूज कर लेंगे. राइट. इसमें एक चीज मिसिंग है, वो है कि इस क्वेश्चन में उन्होंने आपको डीआर लैटिट्यूड नहीं दिया है. नाउ पोलारिस के क्वेश्चंस में अगर डीआर लैटिट्यूड आपको ना दिया हो, इन दैट केस सेक्सेंट ऑल्टीट्यूड पोलारिस का हमारे पास है. हम इसे जब करेक्ट करेंगे तो हमारे पास पोलारिस का ट्रू ऑल्टीट्यूड भी आ जाएगा. You can use that true altitude as your DR lat. Okay? आप उसे अपना DR lat अज्यूम करके यूज कर सकते हो, क्योंकि जब आप टेबल में जाओगे तो टेबल में आपको A1 करेक्शन के लिए लैटिट्यूड की जरूरत पड़ती है. तो वो लैटिट्यूड क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो हम पोलारिस के ट्रू ऑल्टीट्यूड को एज आवर लैटिट्यूड यूज कर सकते हैं. तो वंस यू डू दैट, आपको सारी की सारी करेक्शन मिल जाएंगी एंड यू विल गेट योर ऑब्जर्व्ड लैटिट्यूड. पोलारिस टेबल से ही आपको पोलारिस का एजीमुथ भी मिल जाएगा. सो यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन टू प्लॉट दिस पोजीशन लाइन. राइट बेटा, पोलारिस साइड सॉल्व हो जाएगी. यस सर. वेरी गुड. अब आते हैं सेकंड पार्ट पे. सेकंड साइड जो है ये है डेनेबोला की. अब जब पोलारिस साइड आपने सॉल्व की तो आपके पास ऑब्जर्व लैटिट्यूड भी आ गया, आपके पास डीआर लॉन्जिट्यूड भी है. तो आप इस साइड को, वैसे तो दो मेथड है हमारे पास, आप इंटरसेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हो, आप लॉन्ग बाई क्रोन से भी सॉल्व कर सकते हो. बट बेटर है यहाँ पे कि आप लॉन्ग बाई क्रोन से सॉल्व करो. दो एडवांटेज हैं उसकी. एक तो ये कि अगर आपकी पोलारिस की पीएल, it is possible in some scenarios it may be exactly running east west. ओके, सो जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एजीमुथ 0.0 होता है, तो अगर वैसी चीज आ गई है तो आपका जो ऑब्जर्व लैट आएगा वो फिक्स लैट ही होगा. एंड इन दैट केस अगर वो फिक्स लैट आपने सेकंड साइट में यूज किया तो डेनेबोला को लॉन्ग बाई क्रोन से जैसे ही सॉल्व करोगे, जो लॉन्जिट्यूड आपको मिलेगा दैट विल बी योर फिक्स लॉन्जिट्यूड. ओके, अगर पोलारिस से हमें फिक्स लैट नहीं भी मिला देन ऑल्सो नॉट ए प्रॉब्लम. आप लॉन्ग बाई क्रोन से इसे फिर भी सॉल्व कर सकते हो. एंड उस केस में हमें लॉन्ग बाई क्रोन से पीएल मिलेगी और हमें इन दोनों को प्लॉट करना पड़ेगा. पोलारिस की साइड को और लॉन्ग बाई क्रोन की साइड को, इन दोनों को प्लॉट करते ही हमें शिप की पोजीशन मिल जाएगी. सो दैट्स हाउ इट इज डन. सर बस एक चीज बता दीजिए, ये A0 की तो A0 की तो वैल्यू मिल जाएगी, A1 की वैल्यू कैसे? बेटा A1 के लिए लैटिट्यूड चाहिए ना. राइट सर, वो तो है नहीं. राइट. तो बेटा पोलारिस क्वेश्चन में अगर कहीं भी आपको डीआर लैट ना दिया हो तो पोलारिस के ट्रू ऑल्टीट्यूड को डीआर लैट माना जा सकता है. राइट सर, क्योंकि करेक्शन बहुत स्मॉल होती है और लैटिट्यूड उसी के आसपास ही मिलना है, इसलिए. राइट. उसका रीजन ये है कि एक तो पोलारिस का जो ट्रू ऑल्टीट्यूड होगा इट विल बी क्लोज टू अवर लैटिट्यूड, एंड सेकेंडली जो ये हमारे टेबल का सेकेंड पार्ट है A1 करेक्शन जो है, आप अगर देखोगे तो इसमें लैटिट्यूड की जो वेरिएशन है वो बहुत है. ऑलमोस्ट 10 डिग्रीज के इंटरवल पे लैटिट्यूड दिए हुए हैं. एंड हमारे डीआर लैट में और पोलारिस के ट्रू ऑल्टीट्यूड में तो हार्डली 1 डिग्री का डिफरेंस होगा एट द मोस्ट. सो वेदर यू टेक द डीआर लैटिट्यूड or you take the true altitude of Polaris to enter into A1 table, second part of the table, A1 correction, both ways the A1 correction is going to be the same.
सर जैसे हम लॉन्ग बैक रोन को अगर मेरिडियन के पास है तो यूज नहीं करते, और Right. एक्स मेरिडियन की भी लिमिट है और मेरे पास तो मेरिडियन पे लेना पड़ेगा। वैसे ही इंटरसेप्ट का कोई लिमिटेशन होता है या उसको कहीं भी एनी टाइम एनीवेयर एनी प्लेस? नो लिमिटेशन बेटा, उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं एक्सेप्ट मरपास। ऑब्वियसली मरपास में तो हम मरपास को ही प्रेफर करेंगे, बट अदर देन मेरिडियन पैसेज इंटरसेप्ट कैन बी यूज्ड एनीवेयर, देयर इज नो लिमिटेशन एट ऑल। ओके एंड सर वन मोर, एक चीज पूछनी थी। जब हम एबीसी वैल्यूज निकालते हैं फॉर Right. कैलकुलेटिंग ट्रू एज्यूमत, कभी कभी जैसे ए नेगेटिव आ जाता है, राइट। तो उसमें उसको नेगेटिव को हमें सर ओमिट करना है कि उसको नेगेटिव साइन के साथ ही यूज करना है? ओके, अब बेटा ध्यान सर देना। वो नेम चेंज कर देते हैं ना। हाँ, ए नेगेटिव किस केस में आता है? ए नेगेटिव, एक तो ये बहुत कम क्वेश्चन में आता है, you can say about 10% of the questions you will get the value of A as negative. A नेगेटिव तब आएगा जब आपके P एंगल की वैल्यू मोर देन 90 हो जाएगी। ओके, ये होता है टेंजेंट लैटिट्यूड अपॉन टेंजेंट P, राइट? लेट मी टॉक फेस टू फेस विद यू। तो जो A है दैट इज टेंजेंट लैटिट्यूड अपॉन tan P। A नेगेटिव तभी आएगा, लैटिट्यूड कैन नॉट बी मोर देन 90, तो tan lat will always be positive। जो टेंजेंट P की वैल्यू है ये नेगेटिव हो सकती है इफ P इज मोर देन 90। अब अगर P मोर देन 90 आता है, आपका कैलकुलेटर आपको नेगेटिव वैल्यू देगा। दिस नेगेटिव वैल्यू इज बेसिकली रिमाइंडिंग यू कि इस क्वेश्चन में A को सेम एज लैटिट्यूड नेम देना है। ओके, क्योंकि नॉर्मल केसेस में तो हम A को ऑपोजिट टू लैट रखते हैं। जब भी कभी ये नेगेटिव वैल्यू आ जाए, it is just reminding you that A is to be named same as latitude। तो आपने इसकी नेमिंग जब कर दी, सेम एज लैटिट्यूड इसकी नेमिंग कर दी, तो ये माइनस का जो पर्पस है वो सॉल्व हो गया। अब आपने इस माइनस को डिसरिगार्ड कर देना है। हम लोग A और B को प्लस माइनस में नहीं लिखते हैं, हम उनकी नेमिंग करते हैं, एंड द नेमिंग टेल्स अस वेदर दे आर टू बी एडेड और सबट्रैक्टेड टू गेट द वैल्यू ऑफ C। एंड बी तो फिर हमेशा पॉजिटिव ही आता है? B will always be positive। ठीक है, तो अगर हमने मतलब नेमिंग प्रॉपर्ली की है, एलएचए अगर 270 से 90 के बीच में है तो ऑपोजिट, और दूसरे केस में सेम एज लैटिट्यूड, तो साइन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? That's right बेटा, the sign does not matter here। ओके सर। ओके, और बताओ बेटा, और क्या डाउट है? देखिए, जो मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग आपने बताए थे ऑफ सेलेस्टियल पीएल्स, उसमें जो उसका थर्ड पॉइंट है, तो उसमें मेंशन्ड है कि अगर फर्स्ट या सेकंड पॉइंट से, यानी कि मरपास से या एक्स मेरिडियन से या पोलरिस से अगर आपकी कोई पोजीशन आई हुई है और फिक्स लैटिट्यूड हो, देन वी शुड यूज लॉन्ग बाय क्रोन फॉर फाइंडिंग द अदर पोजीशन। रीजनिंग उससे हमें सीधा ऑब्जर्व लॉन्ग आ जाएगा। लेकिन ये सिर्फ वैलिड तब होगा अगर पोलरिस के केस में एजिमथ नॉर्थ है 00 डिग्री, क्योंकि तभी तो पीएल ईस्ट वेस्ट होगी, राइट? राइट बेटा, दैट्स परफेक्टली राइट। क्योंकि अगर वो नहीं हुआ तो फिर तो इंटरसेप्ट यूज करें, लॉन्ग बाय क्रोन यूज करें, दोनों ही केस में हमें पीएल जरूरत पड़ेगी अगर एजिमथ नॉर्थ नहीं हुआ पोलरिस से। दैट्स राइट बेटा, अगर एजीमुथ नॉर्थ नहीं है तो फिर आप कोई भी मेथड यूज कर लो, दोनों में सेम टाइम लगेगा, सेम कैलकुलेशन रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि दोनों ही केसेस में प्लॉटिंग तो करनी ही पड़ेगी। करनी पड़ेगी। ओके, इवन दो आप बोलोगे सर एजीमुथ 359.9 है, ओके, तो पीएल इज वेरी क्लोज टू द लैटिट्यूड, बट स्टिल हमें एग्जाम में एक प्लॉट बना के वहां पे शो करना ही पड़ेगा। करेक्ट सर। ओके ओके, और बताओ बेटा, और क्या डाउट आए अभी तक? ये प्रैगनैफ की बुक में जो मून की एक्सरसाइजेज हैं, उनमें जब लॉन्गिट्यूड करेक्शन लगा के, जब सब करेक्शन लगा के जीएमटी निकाला है, उसमें सेकंड किसी भी क्वेश्चन में निकाला नहीं है सेकंड में, मतलब वो ओमिट ही कर दिया, उसको मिनट्स में राउंड कर दिया है। ओके, उसका रीजन ये है बेटा कि देखो, जो भी हमारी एल्मनैक के राइट साइड वाला जो पेज है ना, उसमें जो राइट साइड कॉलम दे रखा है एक एल्मनैक इंफॉर्मेशन के बाद, जीएचए डेक्लिनेशन मून के कॉलम के बाद जो राइट साइड में वैल्यूज हैं, वो सारी की सारी वैल्यूज अगर आप ध्यान से देखो
they are given to the accuracy of minutes only. चाहे वो ट्वाइलाइट का टाइम हो, नॉटिकल ट्वाइलाइट, सिविल ट्वाइलाइट, चाहे वो सनराइज का टाइम हो, मूनराइज का टाइम हो, या मून सेट सनसेट का टाइम, ये सारे के सारे टाइम दे आर गिवन अप टू द नियरेस्ट मिनट्स। तो जब आप इनको इंटरपोलेट करते हो, अब इंटरपोलेट करने पे आपकी वैल्यू मिनट में आ सकती है। नाउ देयर आर टू ऑप्शंस अवेलेबल टू यू। If you want to take that second, you can take it, but that does not mean कि आपकी accuracy second तक हो गई है. No, because the initial values which are given, the base values which are given in the almanac, they are only accurate up to minutes only. और अगर आप चाहो तो आपकी जो इंटरपोलेटेड आंसर आया है, आप उससे नियरेस्ट मिनट में राउंड ऑफ भी कर सकते हो। तो बुक में उन्होंने इसे नियरेस्ट मिनट में राउंड ऑफ कर दिया है। दे हैव नॉट टेकन अप द सेकेंड्स। ओके, पुराने टाइम में तो जब हम बेटा कैलकुलेटर यूज नहीं करते थे, वी ऑलवेज यूज टू राउंड देम ऑफ टू नियरेस्ट मिनट। आज हमारे पास कैलकुलेटर्स हैं, सो इफ यू वांट, आप इंटरपोलेटेड वैल्यू को सेकंड में रखना चाहो तो रख भी सकते हो, बट ऑलवेज रिमेंबर इन योर माइंड कि जो भी टाइम्स हम इनके बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, इनकी एक्यूरेसी मिनट्स तक ही रहती है। ओके सर। एंड सर वन लास्ट क्वेश्चन, जो हमारी एल्मनैक में टाइम्स दिए हुए सर, लेट्स से प्लैनेट्स के हमारे पास दिए हुए हैं ना, दोज आर टैबुलेटेड फॉर ऑल 3 days, तो उसको हम लोग मिडिल डे के लिए मानेंगे कि ऊपर वाले दिन के लिए कि नीचे वाले दिन के लिए? ओके, अब बेटा एक्चुअली तो वो जो वैल्यू है दैट इज फॉर द मिडल डे। आप अगर ऊपर वाले डे में जाओगे या नीचे वाले डे में जाओगे तो 4 से 5 मिनट की एरर आ सकती है। ओके, लेकिन हम लोग जब भी कभी इन टाइम्स को यूज करते हैं, वी यूज दीज टाइम्स फॉर ऑल द 3 days गिवन इन दैट पेज। अब ये डाउट आएगा कि सर आपने बोला 4-5 मिनट की एरर आ सकती है, पर आप बोलते हो कि तीनों दिनों के लिए उसी को यूज करना है, तो फिर ये एरर से क्या होगा? इस एरर से हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। रीजन बीइंग, इन टाइम्स को हम सिर्फ एक ही पर्पज के लिए यूज करते हैं, दैट इज टू चेक द डेक्लिनेशन ऑफ द प्लेनेट। 4-5 मिनट की एरर के साथ डेक्लिनेशन में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ओके, ज्यादा से ज्यादा फर्क जो इनमें आ सकता है वो 0.1 मिनट का है। ओके, सो 4-5 मिनट में प्लेनेट ऊपर या नीचे नहीं जाने वाला इक्विनॉक्शियल से। 0.1 की डेक्लिनेशन का अगर चेंज आ भी जाता है, दैट इज वेरी मच एक्सेप्टेबल। सो वी डोंट गो इनटू, चाहे तो हम इसको कर सकते हैं कैलकुलेट, ऊपर वाले दिन के लिए भी, नीचे वाले दिन के लिए भी। ओके, बट दैट्स पॉसिबल व्हेन यू हैव द फुल एल्मनैक विद यू। ओके, अब हमारे पास है सिलेक्टेड पेजेस, तो हो सकता है पिछले दिन के पिछले पेज में आपको सब्सिक्वेंट डेज ना मिले, तो ऐसे केस में उसे कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होगा। बट प्रैक्टिकली ऑन स्टेप, इफ यू वांट, you can calculate it for each day of the almanac, but it does not serve any purpose for us because we wanted to use this time for declination, which does not undergo any substantial change in that duration. और सर लेट्स से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इफ यू गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम अक्टूबर और हमारे पास जो एक्सट्रैक्ट्स हैं उसमें अक्टूबर का 6 दिन का कंटिन्यूस डेटा है, 9 से लेके 14 तक का है, इन केस उसमें से अगर आता है then also we don't need to calculate or we will have to calculate? Not required बेटा, not required and not recommended, क्योंकि बेनिफिट कुछ नहीं होगा, डिसएडवांटेज होगी, यू विल बी स्पेंडिंग मोर टाइम, कोई क्वेश्चन छूट जाएगा तो नुकसान होने के चांस है। So even if you have the page, don't do it. Just pick up that time and use it for whichever day you require it. Okay sir, thank you sir. Okay. Okay. और बताओ बेटा, और क्या डाउट्स हैं? तो एक बंदे ने उस दिन परसों एक क्वेश्चन पूछा था ना सर कि शिप्स टाइम ऑफ फाइंडिंग द शिप्स टाइम फॉर सन्स मेरिडियन पैसेज वाला एक क्वेश्चन था, तो वो एक्चुअली दोबारा बता देंगे सर एक बार प्लीज? ओके ओके, let me show you a question. I think I have it here.
Just give me 1 minute. Okay. Beta, do you have that question by any chance? Yes, sir, I'll send you on WhatsApp. Okay, WhatsApp पे भेज दो. I'll just display it here. भेज दिया. Okay. Okay, this is the one. 322. Okay, beta, let me show you this question. This is the question, beta. A morning sight of the sun taken at 0850 ship's time on 1st September 1992 using DR-LAT 2620 gave an observed longitude of 165.06. Using an estimated speed of 18 knots on a course of 120, calculate the ship's time of sun's meridian passage. तो हमें उन्होंने सबसे पहले तो बोला है कि you find out the time of sun's meridian passage. अब यहाँ पे मेरिडियन पैसेज टाइम निकालने में दिक्कत क्या है? देखो, सन का मेरिडियन पैसेज टाइम तो एल्मनैक में हर एक डे के लिए दिया हुआ है, बट द प्रॉब्लम इज इन्होंने यहाँ पूछा है फिफ्थ टाइम ऑफ सन्स मेरिडियन पैसेज. जो एल्मनैक में टाइम दे रखा है वो कौन सा टाइम है बेटा? LMT. LMT मत बस. Exactly, very good. That time is LMT time. The time required here is the ship's time. अब ये दोनों डिफरेंट है बेटा. LMT is dependent upon the longitude and ship's time is dependent upon what difference are you keeping on ship from GMT. अब GMT +2 हो, GMT +5 हो, GMT +10 हो या GMT -5 हो, इस पे डिपेंड करता है कि शिप्स टाइम क्या होगा. अब इन्होंने हमें इस क्वेश्चन में आगे बता रखा है, इफ यू सी हियर, शिप्स टाइम इज इक्वल टू GMT +11. सो बेसिकली अगर हमें GMT हमारे पास मिल जाए, उसमें 11 ऐड करते ही शिप्स टाइम मिल जाएगा. So what we require is GMT Marpas. What is given in the almanac is LMT Marpas. अब LMT को GMT में कन्वर्ट अगर करना है तो हमें चाहिए हमारा लॉन्जिट्यूड. ओके, जो लॉन्जिट्यूड इन्होंने हमें दिया है 165.06, ये तो मॉर्निंग टाइम का लॉन्जिट्यूड है. 0850 आवर का लॉन्जिट्यूड है. नून का लॉन्जिट्यूड हमें पता नहीं है. इन्होंने हमें ये भी नहीं बताया कि नून तक जो है हम कितना डिस्टेंस सेल कर रहे हैं. इन्होंने तो हमें स्पीड बता दी है. सो हम नून का लॉन्जिट्यूड कैलकुलेट कर भी नहीं सकते.
तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? सो डिड यू अंडरस्टैंड द कैच हियर इन द क्वेश्चन बेटा? यस सर। ओके, अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं हम? इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग इटरेशन मेथड यूज करते हैं। तो क्या करते हैं उसमें? हम सबसे पहले तो देखते हैं एल्मनैक में शिप्स टाइम ऑफ LMT मरपास कितना दिया है? 1200 दिया है। हम ये अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम कर लिया हमने कि शिप्स टाइम ऑफ मेरिडियन पैसेज विल आल्सो बी 1200। ओके, ये हमने अज्यूम कर लिया, बिकॉज नॉर्मली शिप्स टाइम जो मेंटेन किया जाता है उसको मेंटेन करने का प्रिंसिपल यही होता है दैट वी कीप द मरपास क्लोज टू नून। तो हमने ये अज्यूम कर लिया। अब इसमें एरर हो सकती है, 5, 10, 15, 20 मिनट की एरर इसमें हो सकती है। उस एरर को हम चेक करेंगे, बाद में चेक करेंगे। हमने 1200 का टाइम अज्यूम करके क्या करना है, जो ये हमारा कोर्स है 120 का कोर्स और 18 नॉट की स्पीड, इस कोर्स और स्पीड के हिसाब से 850 के बाद अप टू 1200 अपना रन अप्लाई करना है। सो जैसे ही आप ये 3 आवर एंड 10 मिनट्स 850 टू 1200 3 आवर एंड 10 मिनट्स का रन अप्लाई करोगे, आपके पास मरपास की या 1200 की एक DR पोजीशन आ जाएगी। Now once you have that DR position, आपको अपना मरपास का लॉन्जिट्यूड मिल गया। Once you have the मरपास longitude, you can apply it to LMT मरपास। जैसे ही आप LMT मरपास में उसे अप्लाई करोगे, आपको GMT मरपास मिल जाएगा, और GMT मरपास जैसे ही मिला तो GMT plus 11 is going to give you ship's time of sun's meridian passage। तो हमारे पास ship's time sun's meridian passage आ गया। अब ये टाइम है अप्रोक्सीमेट। क्यों? क्योंकि हमने शुरू में 1200 आवर्स का टाइम लेके अपनी कैलकुलेशन को शुरू किया था। अब हमारे पास जो शिप्स टाइम आ गया है, इट में बी 1150, इट में बी 1210। ओके, जो भी ये टाइम आया है, इस टाइम के साथ सर एक बार सर ये रन अप्लाई करने के बाद क्या करेंगे सर? ये 3 आवर 10 मिनट्स का जब रन अप्लाई करेंगे उसके बाद तो बता देंगे। ओके, जब आपने 3 आवर 10 मिनट का रन अप्लाई किया तो आपके पास मरपास की DR पोजीशन आ गई बेटा? राइट सर, लॉन्जिट्यूड भी मिल गया हमें। वेरी गुड। मरपास की लैट लॉन्ग दोनों मिल जाएंगे हमें। हाँ, DR लैट लॉन्ग दोनों, मरपास की पोजीशन आपके पास आ गई। अब आपने क्या किया, जो ये मरपास का लॉन्जिट्यूड है, इससे आपने LIT निकाला, लॉन्जिट्यूड इन टाइम निकाला, राइट? निकल जाएगा, डिवाइड बाय 15 करेंगे तो सर मिल गया, और समझ गया सर। वो बस मिस आउट हो गया था कि उसके बाद क्या किया, लॉन्जिट्यूड के बाद LIT। ठीक है सर। ओके, LIT को हमने अप्लाई किया, जो मरपास टाइम एल्मनैक में दिया गया है हमारे पास, उस अप्लाई करते ही GMT मरपास आ जाएगा। ओके बेटा, गॉट इट नाउ? यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। सर इसके बाद जो शिप्स टाइम ऑफ सन्स मेरिडियन पैसेज आएगा फाइनली में, वो अप्रोक्सीमेट आएगा। तो फिर उसमें फिर वही टाइम डिफरेंस देख के दोबारा से पोजीशन कैलकुलेट करेंगे ना? राइट बेटा, उसे एक बार और इस मेथड को करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास शिप्स टाइम ऑफ मेरिडियन पैसेज आ गया। अब हमें 1200 लेने की जरूरत नहीं है, अब हमारे पास शिप्स टाइम ऑफ मेरिडियन पैसेज आ गया है। अब एक बार इस कैलकुलेशन को दोबारा से करेंगे। दूसरी बार जो शिप्स टाइम आएगा हमारे पास, दैट इज द एक्यूरेट टाइम टू बी रिटन इन द आंसर। ओके सर, ओके 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 सर। ऐसे GMT में ये +11 लगाएंगे ना, जो हमें लास्ट मिला LIT के LMT LIT से जो GMT मिला है। दैट्स राइट बेटा, जो GMT आएगा उसमें 11 आवर्स ऐड कर देंगे, शिप्स टाइम ऑफ सन्स मेरिडियन पैसेज आ जाएगा। ओके, तो बेटा फर्स्ट सेशन हमारा जो है ये अब कंप्लीट हो गया। सो लेट्स टेक ए ब्रेक एंड लेट्स मीट बैक एट 45। इफ देयर आर एनी मोर डाउट्स, उनको भी सॉर्ट आउट करते हैं, देन वी मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज हाई एल्टीट्यूड ऑब्जर्वेशन। So be back at 45 बेटा। ओके।